जिसमें माँ कहती है कि अच्छा आप स्कूल से आए हो बेटा, चलो आओ फटाफट खाना खा लो. So that's making you comfortable. So the whole idea of comfort food is कि आप comfortable feel करते हो with yourself and you know with your environment. But are all comfort foods healthy, unhealthy? That is, as adults we have the agency to decide. As adults, I would like to add into this. Like here, to trust with my hand, I don't feel as satisfying. Must be it is not soothing to the other person, and I don't eat it in front of others. But when I go to a corner, have it crushed with my fingers, only then I have the satisfaction. that's precisely. मतलब हम भी नॉर्थ इंडिया में स्वाद ही कुछ और होता है. एंड टेक्निकली भी आप देखो तो आप जब हाथ से खाते हो, you can have only minimal amount of serving. And a lot of weight proportions diet में बोलते हैं कि अपना सर्विंग स्पून छोटा करो, चॉपस्टिक से खाओ, हाथ से खाओ, बिकॉज हाथ से आप इतने से कितना उठा लोगे, while a spoon is like a big spoon. So that satiation में भी वो सब चीज़ हेल्प करती है. Yes. हम हाथ से खाने का एक और बेनिफिट होंगे, लाइक टच भी हम फील करेंगे तो उससे और very important thing. It stimulates the saliva and the digestive process, which will start the process of digestion. To add a joke to what you said about chopsticks, so when I was in Europe, they used to say that the Chinese eat rice with chopsticks. Yeah. Because अगर वो spoon से खाते तो पूरी दुनिया को rice नहीं मिलती. सही बात है. Okay. तो वो है plus temperature. Yeah. Yeah, for warning आई हाँ hot food because hot you food, immediately put it inside and it's very hot. So that gives you the receptor. Yes. आपके हाथ ने टेस्ट कर लिया Yeah. whether it's safe to go inside or not. No, And again conditioning. जिसको हाथ से खाने की आदत है वो चम्मच से नहीं खा सकता. खा भी लेगा तो उसको वो satisfaction रोटी नहीं. रोटी आप नाइफ फोक से काट के नहीं खा सकते. Yeah, that's true. That's true. And this is a little about हर फूड का जो origin है उसमें ही हमारा आता था to food is meant to guard us, to graze and to feed and basically to keep us nourished. अब as we have progressed हमारा evolution बढ़ता जा रहा है, so हमारे पास food के meanings और बन गए हैं. But the primary function of food was to guard ourselves against. तो जब हम ape के ज़माने में चले जाए, when we were all ape animals, उस समय उनके लिए food was like to hunt. The primary दो functions होते थे to protect themselves and to feed themselves. So एक जाना खाना ढूंढने जाता था और दूसरा खाने को protect करता था. I have actually seen it, the lion hunting and the lioness is protecting. So a source coming from. I would love to know. Because I have seen it In Africa as well. एक pride में सिर्फ एक lion होता है. एक lion. ठीक है? Yeah. And if he takes over a pride, he kills all the male cubs as well. If a lion takes over a pride, Yeah. he'll kill all the male cubs, he'll leave all the females. तो एक lion है और hunting ambush की तरीके से होती है. They chase and then they attack. Very much like a military formation. तो main वो leader है, वो territory का guardian है, but it's a team of lionesses that is hunting. Yeah. So she's right, yeah. Yeah, that's an Yeah, we interesting could find out because point, last year to I was find in out. Africa and I saw it how I saw a lion hunting a deer and an antelope. So They hunt as an ambush. Have a lot of expression. thank you for adding. A little bit of information. My father-in-law, पता नहीं चलेगा. And similarly, I remember my grandfather, whenever he used to come to have his lunch, वो पूरा एक कॉर्न निकालते थे एक कौवे. See that kings used to first feed to the animals, and only then they used to feed because there was a danger of food getting poisoned or getting spoiled or damaged or being stale. ये रोटी निकालते हैं. Right, रोटी निकालते हैं. सिक्सिज्म में भी बोलते हैं कि one stuff से खाना. Means that you distribute your meals with others. My father used to say whenever we wind the dining table, after the dinner or anything, he used to say, ज़्यादा करो. I used to, why you are saying this कि ज़्यादा करो? यहाँ क्या ज़्यादा करो? बोले ये खाना है and this is the most important thing. उसको हमेशा बढ़ाना चाहिए. इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा करो. मतलब यहाँ से होगा but never say कि wind it up or finish it up. It should always be increased. So that's that we could do that. Yes. For yourself and just pass it across.
with a fruit and I took a slice of apple. And when I took that piece of apple in my mouth, it was so different that I couldn't explain to anybody. But the amount I enjoyed that one slice of apple was after the fast. The aroma, I eat it every day. But within it was like something like right from the sky, like something that I enjoy satisfied. So definitely giving time to it. So I feel restricted food also really, when you have to eat one berry, no, we took time to enjoy. Probably if I had 10 in my hand, I would have gotten it. Yeah. और ऐसे ही होता है. Sometimes we just keep looking at the TV and gobbling up nuts like even without anything. पॉपकॉर्न आर टिपिकल एग्जाम्पल. आप मूवी देखने जा रहे हो, आप पॉपकॉर्न का पूरा टब खा लो, which may not be good for your body at all. But without thinking about it, without noticing कि वो, thank you for bringing it up. And that's true. Thought that I'm having, मेरे पास अभी choice है, मेरा भेलपुरी खाने का मन है. So maybe instead of having like a full plate, I can choose my portion size. अभी जब हमने एक बेरी खाया, और खाओ, आप मुझे बता नहीं पाओगे इसमें से ब्लूबेरी कौन सी मैंने पहले खाई और ये रेड क्रैनबेरी कौन सी खाई, गोल्डन कौन सी खाई. So the idea is, आपका अगर मन कर रहा है, allow yourself, but result आता है. You have to practice it for 3 weeks. But actually I have studied somewhere else that कि You can keep sitting. मैंने मतलब बस आई हैव हर्ड समवेयर कि हम लोग जैसे डाइट मतलब हम लोग डाइट करते हैं या फिर हम स्टार्च करते हैं तो हम लोग पतले हो जाते हैं. बट उससे ये होता है कि हम लोग अगर डाइटिंग करेंगे या स्टार्च भूखे रहेंगे तो हमें भूख और लगेगी तो उससे मोटापा होगा. और कई जगहों पे ये लगता है कि जैसे ये नमकीन है, नमकीन खाने का बहुत मन करता है या फिर गोलगप्पे है या कुछ खाने का मन करता है. पर दिमाग में ये रहता है ना कि खाएंगे तो मोटे हो जाएंगे, शेप बदल जाएगा, फिर लोग मजाक उड़ाएंगे. तो मैं ये चाहती हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए कि वो भी हो जाए. बट लोगों के दिमाग में ये है कि I'll just answer your question. So Akriti just referred to our program and I had prepared kheer. So they were all like, मैम क्या हाथ की खीर खानी है. So पहले दिन प्रिपरेशन कर लिया क्योंकि अगले दिन ढक्कन खोलते हुए पूरा गिर. Where you're prone to having a bigger bump or something. Yeah. So just try to be somebody who's very lean, who's size 0 or maybe less, and try and come into that. से आज खाने के बारे में खाने के किस तरह से बताया गया. सो मैं आकृति सेठी हूँ, मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ. एंड आज हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो फूड एंड मेंटल हेल्थ पर है. सो कैसे हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा रिलेशनशिप विद फूड हमारी ईटिंग हैबिट्स पे इफ़ेक्ट करता है. एंड कैसे हमें जो हम कहते हैं हमें गट फीलिंग आ रही है तो वो एक्चुअली में हमारी गट में बनती है. सो हमारे 90% जो सेरोटोनिन हार्मोन होता है वो हमारी गट में बनता है. इसीलिए हमें अपने खाने का बहुत ध्यान देना चाहिए अगर हम मेंटल हेल्थ की समस्या से जूझ रहे हैं. सो इट्स अ लाइफस्टाइल प्रोग्राम ही हम एडवोकेट करते हैं एंड उसमें खाने का एक बहुत बड़ा रोल. फीलिंग माइंड्स का सेमिनार चल रहा है जिसमें हम फूड फॉर थॉट के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि खाने को सोचकर खाने के बारे में हमें कैसे खाना चाहिए कि जिससे वो हमारे मन को भी स्वस्थ रखे, कैसे हमें खाना खा के अच्छी सेटिस्फैक्शन मिले. तो उसके इम्पोर्टेंस, कोरिलेशन ऑफ द गट एंड द माइंड, उसके ऊपर हम बात कर रहे हैं. किस तरह से आज बताया था कि पुराने ज़माने में हाथों से खाना खाया जाता है, अब यानी कि चम्मचों से या किसी चीज़ से खाया जाता है, उसमें स्वाद. हाँ जी, इस पे हमने इसी चीज़ की चर्चा करी कि कैसे पुराने ज़माने में हम खाना पहली बात तो रसोई में या खुले आंगन में बैठ के खाते थे जिसमें सारा फोकस या ध्यान हमारा खाने के ऊपर होता था. खाना हम चौकड़ी मार के और खाने फ्रेशली बना होता था. जो घर की माएँ हैं खाना ताज़ा बना कर दे रही होती थी और अपने हाथ से हम खाना खाते थे. तो जब हम अपनी उंगलियों से वो खाना खाते हैं, हम सही मात्रा में खाते हैं, उससे हमारा सलाइवा, हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है और वो खाना सही से हमारे को पच जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है. तो बहुत ज़रूरी है कि खाना खाते समय हम खाने पर ही. मैं डॉक्टर चीनू अग्रवाल, फीलिंग माइंड्स के मेंटल हेल्थ कार्निवल का आज 6ठा दिन है और आज हम फूड फॉर मेंटल हेल्थ के बारे में चर्चा कर रहे हैं. ये जो कार्यशाला है इसके लिए आकृति सेठी जो एक मनोवैज्ञानिक हैं और खान पान के विशेषज्ञ भी हैं, ये लुधियाना से आज हमारे फीलिंग माइंड्स के नए सेंटर 88 विमल विहार में पधारी हुई हैं. उसी के साथ
रचना अग्रवाल जी जो आगरा की जानी मानी डाइटिशियन है, और मनप्रीत छावा जी जो हमारी आज की चीफ गेस्ट हैं, जो ताज व्यू की जीएम भी हैं, हमारे यहाँ आज हैं। उपस्थित प्रतिभागियों में बहुत सारे डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट आज मौजूद हैं, टीचर्स भी आए हुए हैं और भी बहुत सारे प्रोफेशनल्स यहाँ पर आज हैं। आज हमने फूड और मेंटल हेल्थ की जो चर्चा की उसमें हमने ये पाया कि खाना पीना भोजन इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। इस संबंध को उजागर हमने किया रिसर्च और साइंटिफिक स्टडीज़ की चर्चा के द्वारा, और हमें ये पता चला कि हमारी जो खुशी है, हमारे जो दुख है, हमारे जो मूड्स हैं वो खाने के साथ ऊपर नीचे होते हैं। और खाना हमारे लिए, हमारे खासकर हमारे कल्चर में, हमारी संस्कृति में हमेशा से एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लिए हुए है। अगर हम अपना वेट मैनेज करना चाहते हैं या ईटिंग डिसऑर्डर्स का इलाज करना चाहते हैं तो हमें एक डाइटिशियन के साथ एक मनोवैज्ञानिक की भी ज़रूरत है, और मन का विज्ञान जाने बिना हम खान पान से रिलेटेड जो हमारे विकार हैं उनको ठीक नहीं कर पाते हैं। यही आज की